Students, today I am going to discuss some important points about the controlling workers. There are so many important points already we have discussed, and also here I have mentioned some important informations about the slaves, free labor, and also the wage laborers. Okay, and that is the subtopic name is that controlling workers. So see, slavery was an institution deeply rooted in ancient world. Yes, slavery was an institution. It was completely root out in the ancient world, and it also existed both in the Mediterranean and in the Near East. ये जो स्लेव सिस्टम था, इसको पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा रूट आउट करने के लिए कोशिश किया गया था, रूट आउट हो भी गया था, और ये हमको देखने के लिए मिलता है मेडिटेरेनियन सी एंड नियर ईस्ट जो एरिया है ना वहां पे. बट रोमन लेबर कंप्लीटली नॉट डन बाय द स्लैब्स, क्योंकि ना वहां पे रोमन लेबर जो थे, जो फ्री लेबर और जो वेज लेबर ये जो थे, इट वाज मतलब कंप्लीटली नॉट डन बाय द स्लैब्स. ये सबको स्लैब नहीं बोला जाता था. एंड ड्यूरिंग रिपब्लिकन पीरियड देयर वाज मेनी स्लैब्स. वो लोग स्लैब्स थे, लेकिन स्लैब्स का ट्रीटमेंट और स्लैब्स का कौन सा तरीका में उन लोगों को मतलब वहां पे माना जाता था, उसके ऊपर में हम लोग ये कंट्रोलिंग वर्कर में देखेंगे. ओके, so next one is that controlling workers. Another points here, slaves were considered as an investment. इन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट भी किया जाता था. रोमन अपर क्लास पीपुल जो थे, कभी कभी हमको ये भी देखने के लिए मिलता है कि रोमन अपर क्लास पीपुल वाज ब्रूटल टुवर्ड्स स्लेव्स. Sometimes upper class means the elite groups and the wealthier family class groups also, that kind of the people, they were brutal, means their action also brutality towards the slaves. Agricultural writers advised landowners not to use slaves in contest where too many might be required, where their health could be damages, because it was so expensive. Already we have know that. एग्रीकल्चरल राइटर्स एडवाइज्ड लैंड ओनर्स. एग्रीकल्चरल राइटर्स का इंपॉर्टेंस समाज में बहुत रहता है, चाहे वो नोबल्स राइटर हो या एग्रीकल्चरल हो या एनी अदर कैटेगरीज. राइटर्स जो है, ये जो मतलब बुक के माध्यम से भी समाज में सचेतनता जागृत कर सकते हैं. सो एग्रीकल्चरल राइटर्स एडवाइज्ड लैंड ओनर्स नॉट टू यूज स्लैब्स इन कॉन्टेस्ट where too many might be required, where their health could be damages, and this sympathy not in consideration but on economic calculation. क्योंकि ना ये जो सिंपैथी देखा जाता था, ये जो उनका हेल्थ के बारे में हो या इनका पूरा सालों भर का खर्चा जो है, इसका ये जो एक्सपेंसिव होता था, इट वाज नॉट कैलकुलेटेड इन द इकोनॉमिकल कैलकुलेशन नहीं किया जाता था. दैट वाज काउंटेड एज ए सिंपैथी. ओके, so next point is that controlling workers. See, because there are so many points about that subtopic. Ordinary showed much more compassion towards the slabs. Ordinary people, ये लोग बहुत मतलब स्लैब्स के प्रति इन लोगों का बहुत एक ठो अलग टाइप का सोच था, और स्लैब्स को ऐसा टॉर्चर भी नहीं होना पड़ता था. और स्लैब्स जो हम लोग अभी जो नाम पे जानते हैं, इट वाज कंप्लीटली रूट आउट फ्रॉम द सोसाइटी इन द एंशिएंट वर्ल्ड. Age warfare, because during that time warfare was so less, so the supply of slaves also declined, because war captives were used as slaves. So the users of slave had two choices. इन लोगों के पास दो टाइप का चॉइस था, use slave or use wage labor. Wage labor means what? You have to give the money at the end of the work, but if you use the slaves, you don't give the money, but you have to take care throughout his life. So that was so much expensive. So free labors was used extensively, used on public works of Roman Empire. So free labors was used extensively, used on public works of Roman Empire. See students, see what I want to say here. Each and every civilization, each and every emperor means labor, slaves and free labor जो भी है, इन लोगों का importance समाज में बहुत रहता है. Okay, so next point. Extensive use of slave labor was too expensive. Already I have told you, extensive use of slave labor was too much expensive. ये बहुत expensive था. Slaves had to be fed and maintained throughout the years.
स्लेव्स को मतलब खाने के लिए देना और इनका पूरा देखभाल मेंटेन करना थ्रू आउट द ईयर. इट वाज सो एक्सपेंसिव. सो इन लेटर पीरियड स्लेव्स वर नॉट यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड सो फ्रीडमैन वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज बिजनेस मैनेजर्स. यहाँ पे उन लोगों को बिजनेस मैनेजर मतलब बिजनेस में भी उन लोगों को यूज किया गया. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मास्टर्स ऑफन गेव द स्लेव्स और फ्रीडमैन द कैपिटल टू रन द बिजनेस. मतलब ये स्लेव्स और फ्रीडमैन को जब मतलब बिजनेस में लगा गया, उन लोगों को मास्टर्स मतलब जो मालिक है बिजनेस को रन करने के लिए मतलब कैपिटल भी जुगाड़ किए इन लोगों के लिए. रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड ग्रेट अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर. मतलब यहाँ पे राइटर्स भी समाज में मतलब जो जागरूकता क्रिएट करने के लिए जो एक टाइप का इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंशियल फिगर जो है उसको क्रिएट करने के लिए लेबर का पोजीशन क्या है वो बहुत कुछ मतलब इसके ऊपर में बहुत अटेंशन दिए थे. सो मास्टर्स बिलीव्ड दैट विदाउट सुपरविजन नो वर्क कुड गेट डन. सो बोथ स्लेव्स एंड फ्रीड वर्कर्स मस्ट बी सुपरवाइज्ड. स्लेव्स और फ्रीड वर्कर्स को दोनों को सुपरवाइज्ड करना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट to make supervision easier, workers were sometimes grouped into gangs or small squads of 10. इसको इसके बाद सम ग्रुप्स भी देखने के लिए मिला था. मतलब सुपरविजन करने के लिए इजी वर्कर्स का गैंग भी देखने के लिए मिला था. उन लोगों को ग्रुप भी बनाए थे. इट वाज इजियर टू टेल हु वाज नॉट इन वर्क एंड हु वाज पुट इन वर्क. मतलब काम करने वाले और काम नहीं करने वाले के भीतर में भी यहाँ पे पता चलता था differences. It was easier to tell who was not in work and who was put in work, and this shows consideration of the management of labor. इसके बाद मतलब पैसा यदि खर्चा किया जा रहा है तो लेबर का मैनेजमेंट को भी देखना बहुत जरूरी है. So Pliny, the author of natural history, condemned the use of slave gangs as the worst method. Pliny, देखो ये जो नेचुरल हिस्ट्री का ऑथर है, also you have to know that name. That question will come to your exam as an MCQ, means it carries 1 mark. So condemned that the use of slave gangs as the worst method. ये जो slave gangs बना गया था ये एक ठो worst method था बोल के यहाँ पे प्लिनी ने लिखे हैं अपना बुक में. बिकॉज स्लेव्स हु वर्क इन गैंग्स यूजुअली चेन्ड टुगेदर बाय देयर फीट. क्योंकि ना ये एक तो चेन बन जाता है. ये यदि गैंग कर दिया जाएगा तो जनरेशन वाइज भी ये चलता रहेगा. सो इट वाज टू मच बैड worst method. So the ways adopted for management of labor were draconian. Draconian means what? You can see the book and in the side of the book it is completely mentioned that word because it is taking so much time. So controlling workers, a seal put up on the workmen's aprons and एक तो seal था इन लोगों का apron में से. They have to wear a mask or a net with a close mesh on their head. See, it is the uniform of the slaves, means the workers. Before they leave the premises, they have to take off all their clothes. जगह छोड़ के जाने से पहले इन लोग क्लॉथ को रख के जाते थे. Law of 398 refer to workers being branded so they could be recognized if and when they run away or try to hide. यहाँ पे हमको एक चीज पता चलता है कि 398 लॉ ऑफ 398 मतलब यहाँ पे लॉ का मजबूती को देखो, फाउंडेशन कितना स्ट्रांग था. सो मेनी आर्टिकल्स आल्सो देयर एंड हम लोग को इतना सारा पॉइंट्स बोलने का मतलब ये है कि एंशिएंट वर्ल्ड में भी एंशिएंट सिविलाइजेशन तो नहीं है, ये एंशिएंट एम्पायर जब था एंशिएंट टाइम पे भी एंशिएंट एम्पायर से भी so many different managements and also foundation was so strong about such kind of a labor and also the slave system. मतलब स्लेव और लेबर को समाज में हम लोग एक तो नजर अंदाज तरीका में देखते हैं, उन लोगों के लिए भी इतने सारे व्यवस्था था. That is one of the most important thing. Okay, so many employers cast their agreement with workers in the form of debt contracts in order to control them. बहुत सारा एम्प्लॉयर्स जो थे कि एग्रीमेंट भी किए थे या डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट भी किए थे. डेप्ट मतलब जो पैसा देते थे उसके ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट भी किए थे, कंट्रोल भी किए थे. मतलब एम्प्लॉयर्स का काम था. ये एग्रीमेंट भी होता था वर्कर्स और डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वर्कर्स के भीतर में. सो मेनी स्लेव्स सरेंडर देमसेल्व्स टू वर्क ऑल्दो दे आर फ्री एंड a lot of poor families went into debt bondage in order to survive. और बहुत सारा जगह में ये भी देखने के लिए मिलता था
कि जो पुअर फैमिली जो है, जिसको पैसा का ज्यादा असुविधा होता था, ये लोग डेप्ट बॉन्डेज में मतलब घुस जाते थे। बहुत सारा डेप्ट बॉन्डेज उनको करना पड़ता था, मतलब पैसा लाना दूसरे से क्रेडिट में, और खुद को सरवाइव करने के लिए खाली डेप्ट बॉन्डेज को डेप्ट करना पड़ता था इन लोगों को। किसको? ना ओनली फॉर द पुअर फैमिलीज। So rural indebtedness was even more crucial. So गांव में जो इंडिपेंडेंस मतलब कर्ज करना, ये जो है बहुत क्रशियल जंक्शन में पहुंच जाता था कभी कभी। क्योंकि ना जब पैसा लोग कर्ज करके लेके आते थे, क्रेडिट में लेके आते थे, उसको फिर देना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। तो that kind of the system not only prevailing today, not only introduced today, but also it was prevailing throughout the means during the period of the ancient empire. Okay. So students, today that much only, because there are so many points already I have told you. You can write in your copy about only the controlling workers. Okay, and next time I will send you one video about the social hierarchies and the late antiquities. Okay, so till then, bye.